read it. Some people were not able to hear. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. I am very much sure that almost all of you are watching the Mayapur online yatra, which is I think telecasted on at 7:30 every day. हर रोज अगले 10 दिन तक आपको मायापुर ऑनलाइन यात्रा YouTube ISKCON बैंगलोर चैनल में प्राप्त होगा. प्लीज लॉग इन करके वर्चुअल यात्रा का आप आनंद लीजिए. And also we have a big festival coming up, Gaur Purnima on 18th of March. All of you are welcome to Vrindavan Chandrodaya Mandir for the celebrations in the evening. And the next day we'll be having the oath-taking ceremonies for the various levels. अनेक levels Prabhupada Ashraya के लिए oath-taking ceremony रहेगा on 19th. Most of you have registered for it, and we will be seeing you on that day. We'll begin today's session. We have to start from shloka number 21. We are doing chapter number 3. तीसरे अध्याय में 21वें श्लोका हम कर रहे. A very very important shloka we are now coming to. It talks about how a leader should be and what he should do and why he should do it. एक नायक का रोल क्या है इस समाज में, ये हम आज कृष्ण के मुंह के द्वारा ही जानेंगे. यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते. So whatever action is performed by a great man, कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी कार्य करेगा, common men follow in his footsteps. तत्तदेवे इतरे जनः, तो सामान्य लोग उसके अनुकरण करेंगे. And whatever standards he sets by exemplary acts, सयत प्रमाणम कुरुते, जो भी वो कार्य एक उदाहरण के तौर पे दर्शाएगा, all the world pursues, लोकस्तद् अनुवर्तते, तो पूरा लोक उनका अनुकरण अनुसरण करना चाहते हैं. तो जो भी a leader therefore must act to set the right example. एक नायक को कैसे कार्य करना चाहिए, एक उसको आदर्श उदाहरण को निरूपित करना है, ऐसे उसको कोई भी कार्य करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए. So people in general always require a leader who can teach the public by practical behavior. तो लोग ज्यादातर नायकों को देख के सीखते हैं. जैसे नायक करते हैं, उनके नायक करते हैं, वैसे वो भी वही स्वभाव और वही कार्य करते हैं. A leader cannot teach public to stop smoking if he himself smokes. Very very clear यहाँ पे लिखा है कि अगर एक नायक खुद धूम्रपान कर रहा है और लोगों को बोल रहा है कि आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, वो कभी काम नहीं करेगा. वो एडवाइस कोई भी सीरियसली नहीं लेगा. एक उदाहरण है, महात्मा गांधी के पास एक औरत अपने बच्चे के साथ आई और उसने बताया
गांधी जी मेरे कहने से ये नहीं मान रही है, माई चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग टू मी, ही ईट्स अ लॉट ऑफ स्वीट्स, तो बहुत मतलब मिठाई खाते हैं, तो मैं तो बोल बोल के थक गई, आप उनको बोलिए कि वो ये आदत छोड़ दें। तो so Mahatma Gandhi was approached by a female with her son who complained that her son was eating too much sweets and she had given up advising him. So she asked Mahatma Gandhi to please advise the child. So Mahatma Gandhi said, why don't you bring him after 20 days? The lady never understood why Mahatma Gandhi is telling this. तो महात्मा गांधी जी क्यों बोल रहे 20 दिन के बाद आने के लिए? ठीक है, नायक बोल रहे तो वो चली गई, और 20 दिन के बाद वो फिर लौटी अपने बच्चे को लेके। So she brought back her son after 20 days. And at that time, Mahatma Gandhi called the child and said, don't eat sweets too much. ज्यादा मिठाई मत खाइए। तो माँ को थोड़ा आश्चर्य हो गया। The lady was very surprised. She was taken aback also, like to say this Mahatma Gandhi took 20 days. तो ये बोलने के लिए महात्मा गांधी जी 20 दिन लगाए। तो उन्होंने बताया महात्मा गांधी जी को, उन्होंने पूछा, she asked, गांधी जी आप उसी दिन बोल सकते थे, आपने 20 दिन के बाद क्यों बोला? आपने 20 दिन के बाद क्यों बुलाया? Why did you call us after 20 days? तो महात्मा गांधी ने बताया, क्योंकि 20 दिन पहले मुझे भी बहुत मिठाई खाने का आदत था। So I had a habit of eating too many sweets, and it was not right on me to give an advice to the child not to eat sweets when I myself was eating sweets. जब मैं खुद इतना मिठाई खा रहा हूँ, तो ये उचित नहीं था कि मैं एक एडवाइस दूं इस बच्चे को कि उनको मिठाई नहीं खाना है ज्यादा। तो इसलिए पिछले 20 दिन से मैंने मिठाई खाने का आदत छोड़ दिया, कोशिश किया, तो सब जब सफल हुआ, मैं अभी एडवाइस दे रहा हूं। सो यू सी, it's just an example that I'm not endorsing Mahatma Gandhi ji here, but I'm just giving an example how a leader should be exemplary. कैसे वो उदाहरण को निरूपित करना चाहिए, आदर्श का प्रमाण करना चाहिए। So Lord Chaitanya said that a teacher should behave properly even before he begins teaching. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु भी यही बोल रहे कि कोई भी आप एडवाइस देने से पहले आपको स्वयं अपने अंदर झांकना चाहिए, एक नायक को अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या वो एक आदर्श मतलब बिहेवियर निरूपित कर रहा है। So one who teaches in that way is called आचार्य। जो भी ऐसे निरूपित करेगा उदाहरण को, उसको आचार्य बुलाते। So we can easily call Srila Prabhupada as Acharya. It's not that he simply gave advices, don't do this, do this. He also, inculcated that in his life. if Srila Prabhupada को हम सही मायने से आचार्य मान सकते क्या वो आचार्य है ही, क्योंकि वो जो बोलते थे वो करके भी दिखाते थे, और जो वो कर रहे थे उसी का वो बोधन कर रहे थे। ऐसे नहीं कि समाज के लिए कुछ उन्होंने बोल दिया और वो खुद अलग कुछ कर रहे थे। He would do something else and he would advise the society something else. It was not like that. So therefore a teacher must follow the principles of Shastra. तो एक गुरु को, एक अध्यापक को शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। एंड टू रीच दी कॉमन मैन, एक व्यक्ति तक आपको पहुंचना है, एक नायक को समाज में अन्य आम आदमी तक पहुंचना है, तो उदाहरण के तौर पे उसको कार्य करते हुए पहुंचना है, ना कि सिर्फ बोलते बोलते पहुंचना है। The teacher cannot manufacture rules against the principles of revealed scriptures. तो कोई भी टीचर मतलब मन गढ़ंत एडवाइजेस नहीं दे सकती या दे सकते हैं। He must not give whimsical advices. It must be based on scriptures. The revealed scriptures like Manu Samhita and similar others are considered the standard books to be followed by human society. एक आदर्श पुस्तक, वेद ग्रंथ, मनु संहिता, भगवत गीता, ये सब एक मानव के लिए आदर्श होना चाहिए और सिखाने के लिए भी यही आदर्श होना चाहिए। Thus the leader's teachings
The leader's teaching should be based on the principles of standard rules. तो जब भी कोई नायक कोई भी एडवाइस दे रहा है तो उसको वेद ग्रंथों के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार देख के देना चाहिए. अपने आप कोई भी एडवाइस सृष्टि करके नहीं देना है. And these are practiced by great teachers. तो अपने पूर्व आचार्यों ने भी यही सिस्टम फॉलो किया था, तो उसको ये एडवाइस देना चाहिए. Srimad Bhagavatam also affirms that one should follow in the footsteps of great devotees. तो श्रीमद् भागवतम में बहुत साफ तरीके से बताया गया है कि हमें अपने आचार्यों का उपासना और उनके मार्गदर्शन, और जो मार्ग पे वो चले उसी मार्ग पे हमको भी चलना चाहिए. They must be the role models for us. आजकल के रोल मॉडल्स नहीं. What are the kind of role models we have today? Film actors depicting dacoits and aggrandizing them or making them superheroes. That's not the kind of role models we want. We want role models who practice spirituality in a bona fide path. And that is the way of progress on the path of spiritual realization. यदि हमें मानव जीवन का पूर्ण उपयोग करना है या मानव जीवन का लक्ष्य हमें पाना है, if you have to attain the goal of this human life and completely utilize these human faculties that is given to us by the Supreme Lord, then we must follow great devotees. Mahajana ena gata sapantaha. महाजनों के हमें अनुसरण करना चाहिए. The king or the executive head of a state, the father and school teacher are all considered to be natural leaders of the innocent people in general. तो आदर्श कौन है एक बच्चे के लिए? माता, पिता और गुरु, ये सब आदर्श होना चाहिए. और तो मतलब माता का रोल, पिता का रोल और गुरु का रोल कितना क्रिटिकल है. How critical these roles are of a father, mother and a guru, that seeing them, the child will inculcate lifelong habits. तो उनको देख देख के बच्चा अपने पूरी जीवन का जो अभ्यास है उनको देख देख के उनके कार्य को देख देख के वो सीख लेता है. So all such natural leaders, so Prabhupada is calling mother, father and teachers as natural leaders because they are the first contact for the child, and what they do and what they instruct, that since the child follows, they're naturally the role models also. So father, mother, teachers must be the role models. They must play the roles of leaders. तो माता पिता और गुरु को एक नायक का रोल प्ले करना चाहिए, मतलब आदर्श बन के दिखाना चाहिए. They must be conversant with standard books of moral and spiritual codes. तो एक गुरु, एक माता, पिता उनको मानव कल्याण के कार्य जो कर्म कांड में दिया है, कर्म योग में हम पाते हैं, भक्ति योग में हम पाते हैं, मॉरल एंड स्क्रिप्चुरल कोड्स, वो सब उनको ज्ञात होना चाहिए और अपने जीवन में उनको उतारना चाहिए और ऐसे ही उनको एडवाइस देना चाहिए. So this is about the role of a leader. We will move ahead and go to shloka number 22, which is coming up on your screen. And before I chant this shloka, we'll just some more points we will do about this very important shloka we did, number 21. We must be the change that we want to see in the world. केवल लोगों को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था. खुद हमको वो ऐसा हमें मतलब बदलाव हमारे अंदर हमें लेके आना चाहिए जो हम चाहते हैं कि दुनिया में भी हो. So we should not be people who are just hankering that the world changes. We must also be a good example of what that change should be, and we must ourselves change first. It begins with us. So our choices have a louder voice
देन जस्ट अवर वॉइस अलोन। केवल बोल बोलने से हम नायक नहीं बन जाएंगे, बोल बोलने से कोई भी लीडरशिप क्वालिटी नहीं आएगा। बाय बीइंग द राइट एग्जाम्पल वी कैन बी गुड लीडर्स। सो चॉइसेस और अवर चॉइसेस हैव अ लाउडर वॉइस। क्या हम अपने जीवन में करते हैं तो ये बाकी लोग देख रहे हैं, वो उनके लिए आदर्श बन जाएगा, especially when we are leaders. So if we justify our weaknesses by comparing ourselves to those who are weaker than us, हमेशा हम अपने आप को जो हमसे नीचे हैं उनसे कंपेयर करके हम सोचते हैं हम ही बड़े हैं, then we actually only weaken our motivation to rectify or change ourselves. तो कभी हम बदलाव लेके नहीं आ पाएंगे हमारे अंदर, क्योंकि हम हमारे सारे अवगुण को जस्टिफाई कर रहे हैं। देखो वो कैसे हैं, देखो ये कैसे हैं। We don't want to have examples who are lower than us. We must have examples who are higher than us. तो हमसे ऊंचे स्तर पे लोगों को हमें आदर्श बनाना चाहिए और वही हमको सिखाना भी चाहिए, ना कि जस्टिफाई करे कि ये देखो समाज में ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं। इससे समाज का बदलाव नहीं आएगा, तो खुद हमें पहले बदलना चाहिए। So we must remember that with great power comes great responsibility. ऐसा नहीं है कि ताकत आ गया, पॉलिटिक्स में हमने पावर ग्रैब कर लिया तो अब हम मन चाहे जैसे भी कर सकते हैं। If you want to be re-elected, you'll have to show good work. You'll have to show good examples. Otherwise, you'll not be re-elected. The recent elections are proving that good work will always speak. चाहे backbiting कितना भी हो, बट अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका मतलब सही या क्या बोलते हैं, अच्छे बेनिफिट्स उनको मिल ही जाते हैं। सो द कैलिबर ऑफ अ सोसाइटी कैन बी जज्ड बाय सीइंग हु देयर हीरो इज। आपके समाज में आदर्श कौन व्यक्ति है, ये देख के हम वेरी इजीली वी कैन से where this community is going to go, whether they are going to elevate themselves or they are going to go down पाताला। कोई समाज पाताल में चला जाएगा या अपने आप को अभिवृद्ध करके ऊपर ऊपर जाएगा, ये हम उनके हीरो कौन है ये देख के हम बोल सकते हैं। So why? Because it indicates collective consciousness। तो पूरे समाज का मिले जुले जो प्रज्ञा है उससे वो निरूपित हो जाता है, उससे वो दिख जाता है कि ये उनका हीरो है, तो उनका फेट भी ऐसे ही होगा। So and today we all know that the moral standards have declined। तो आज हम देखते हैं कि आदर्श जो क्वालिटी है वो नायकों में पूर्ण तरीके से लुप्त हो गया है। So in movies in the name of bold scenes, obscenity is promoted। तो बहुत सारे एक्ट्रेसेस को वाहवाही मिल जाता है अगर वो कोई बोल्ड सीन करे। बोल्ड सीन का मतलब क्या है? ऑब्सीन सीन। और बहुत सारे महिलाओं को या पुरुषों को भी वैसे व्यक्ति ही हीरो बन जाते हैं, मतलब रोल मॉडल बन जाते हैं कि हमें ऐसे बोल्ड होना चाहिए। बीइंग ऑब्सीन इज नॉट बीइंग बोल्ड, इट जस्ट बीइंग शेमलेस, दैट्स ऑल। अगर हम ऑब्सीनिटी को बोल्डनेस बोलेंगे तो ये मूर्खता है। ऑब्सीनिटी तो सिर्फ शेमलेसनेस है। So then that becomes a social ideal for many। तो मैंने एक इंटरव्यू, I heard an interview where a very young girl was fighting with her parents that she wants to become like one of the porn stars who had recently come to India and become a movie actress। तो ऐसे आदर्श हम पाएंगे then क्या बोले हम, समाज का क्या होगा। So leader must live as per scripture। तो लीडर कौन है, कौन हमारा आदर्श होना चाहिए? लीडर में हमें कैसे पता है कि हमें कैसे नायक को चुनना है? तो very clearly given in Bhagavad Gita and Prabhupada's purports, and in single word, in single sentence we can say leader must be a person who lives as per scripture। शास्त्र प्रमाण से जो अपने जीवन को निरूपित कर चुका है वो नायक बनने का लायक है। So devotees must be models and they must not be critics। तो हम जो भक्त हैं तो हमें रोल मॉडल बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें क्रिटिक होना चाहिए कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है।
तो उससे बेहतर है हम क्या सही है वो करके दिखाए. So we must do what is right and show it as an example. So we must set a good and right example. एक अच्छा उदाहरण हमको निरूपित करना है. So I spent good time on this particular shloka because naturally we've heard that माता पिता गुरु natural leaders है, स्वाभाविक नायक है. तो गुरु मतलब सारे डिवोटीज भी गुरु की तरह है, क्योंकि पूरा समाज उनके मतलब आदर्शों को देख रहे हैं. Devotees are also naturally leaders. Why? Because people are seeing them and they are trying to apply what these people do in their lives. It may not be very true in Kali Yuga that people want to follow the example of devotees. You all know what you face in the outside world. आप सब जानते हैं वैयक्तिक अपने जीवन में आप क्या फेस कर रहे हो. लोग यही मानते हैं कि आपने बड़ा गुनाह कर दिया कृष्ण भक्त बन के. I'm very sure you are all facing that. So if you have not faced it so far, it's not very far. The day is not very far. You will face it. So be ready for it. So we'll do next sloka. Name partasti kartavyam vishu lokeshu kinchana anavaptam avaptavyam varta evacha karmani. So name partasti kartavyam. So what is Krishna trying to tell here? Krishna is telling, O son of Pritha, Partha, हे पृथा के पुत्र पार्थ, there is no work prescribed for me. मेरे लिए तो कोई कार्य है ही नहीं. मैं भगवान हूं, मेरे लिए कार्य है ही नहीं. Of course, it's still not revealed to Arjuna that he is Bhagavan here. But since Arjuna is looking up to Krishna, Krishna is telling, see Arjuna, I don't have any duty to perform. I don't have to perform any duty. I'm in such a position. हमें पार्थ अस्ति कर्तव्यम. तो मेरे लिए कोई कर्तव्य है नहीं. त्रिशलोकेषु किंचना. तो विद इन ऑल द थ्री प्लानेटरी सिस्टम्स, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कार्य मतलब कर्तव्य है नहीं. Nor am I in want of anything. नाना अवाप्तवम नाना अवाप्तम अवाप्तव्यम. मतलब nor am I in want of anything. मुझे तीन लोगों में भी कुछ भी नहीं चाहिए. मेरे पास सब कुछ तो है ही. Nor am I need to obtain anything. जिसके पास सब कुछ है उसको और क्या पाने की इच्छा होगी. भगवान के पास तो सब कुछ है. So yet I am engaged in work. वर्त एव च कर्मणि. लेकिन फिर भी मैं कार्य कर रहा हूँ. देखो अभी मैं सारथी बन के आपके सामने बैठा हूँ. तो कृष्णा is saying I myself am engaged in activities. So why is Krishna engaged in activities? Although it doesn't have to be engaged, he will explain in the coming shlokas. And that's how we as devotees, devotee leaders, we must set example for the world. The Supreme Person of Godhead is described in Vedic literatures as follows. भगवान को वेद ग्रंथों में ऐसे मतलब उल्लेख किया गया है. What is that? तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम, तम देवतानां परमं च दैवतम, पतिं पतीनां परमं परस्ताद, विधान देवं भुवनेशम ईढ्यम, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत् समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियचा. What is the Supreme Lord telling here? What is Prabhupada telling in his purport? कि वेद ग्रंथों में ये दिया गया है. The Supreme Lord is the controller of all other controllers. So छोटे छोटे ईश्वर रहेंगे घर में. Father is the Ishvara, controller of everybody in the family. And समाज में शायद और कोई लीडर हो सकता है. एक स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर है. And for the country it might be the prime minister. So there are many types of Ishwaras of different grades. But Bhagavan Krishna is the controller of all other controllers. Bhagavan Krishna, Ishvara, Parama Krishna, Parameshwara. सब ईश्वर छोटे छोटे मोटे मोटे बड़े बड़े ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है. And he is the greatest of all diverse planetary leaders.
और सबसे बड़ा नायक भगवान श्री कृष्ण है। तम देवतानम परमम च दैवतम, तम ईश्वराणम परमम महेश्वरम। So everyone is under his control. तो सब लोग उनके मतलब कंट्रोल में हैं। All entities are delegated with particular power only by the Supreme Lord. तो सारे नायकों के अंदर जो शक्ति है कहां से आ रहा है? वो भगवान से आ रहा है, कृष्ण भगवान से आ रहा है। सो पतिम पतीनाम परमम परस्ताद विधाम देवम भुवनेशम ईड्यम। He is also worshipable by all demigods. सारे देवता उनकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। एंड इज सुप्रीम डायरेक्टर ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। तो वो डायरेक्टर्स का डायरेक्टर्स है, निर्देशकों का निर्देशक है, फिल्म वाला नहीं। टॉकिंग अबाउट निज रूप निज जिंदगी में जो लोगों को मार्गदर्शन देते हैं वैसे डायरेक्टर्स। So therefore he is transcendental to all kinds of material leaders and controllers and is worshipable by all. तो भगवान सबसे मतलब पूजनीय है क्योंकि वो परमेश्वर है, सबका नियंत्रक है। So even but ऐसे भगवान भी कार्य करते हैं, वर्त एवाच कर्मणि। Even God works although he need not. कार्य करने की जरूरत नहीं लेकिन वो करते हैं। क्यों करते हैं हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। There is no one greater than him. तो उससे अध्य का, उनसे ज्यादा अभ्यधि का कोई नहीं है और उनके सम कोई नहीं है। तो न तत्समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते, हमें तो दिखाई नहीं देता। भगवान कृष्ण से ऊपर कौन है हमें नहीं दिखाई दे रहा है, भगवान इसके सम कौन है हमें पता नहीं है और कोई है भी नहीं। इसका असम ऊर्ध्वा, असम ऊर्ध्वा, उसके समान, भगवान कृष्ण के समान और उनके ऊपर कोई नहीं है। एंड इज सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो यहाँ पे दिया गया है परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाच। तो स्वाभाविक की तरीके से पूर्ण ये लोक चल रहा है उनके निर्देशों के अनुसार, लेकिन खुद वो कुछ काम नहीं करते, वो डायरेक्शंस देते रहते हैं। He does not possess bodily form like that of an ordinary living entity. सामान्य जीव के तरह उनका शरीर तो है नहीं। There is no difference between his body and his soul. उनके आत्मा और उनके शरीर में कोई मतलब भेदभाव नहीं है। हमारा आत्मा है, हम आत्मा है और ये हमारा शरीर है, और ये शरीर और हम जो आत्मा है उसमें अंतर है। लेकिन भगवान इज एब्सोल्यूट, मतलब भगवान के शरीर और भगवान के जो परमात्मा है, जो परमात्मा है उसमें कोई अंतर नहीं। He is absolute and all his senses are transcendental. उनके सारे जो इंद्रिया है वो दिव्य है। Any of his senses can perform the action of any other senses. वो एक मतलब इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का काम कर सकते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता का हम जो गाना सुनते हैं in the opening of all the darshan aartis. What is that? What is that we hear? अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय बुद्धिमंती। मतलब वो अपने एक अंग से दूसरे अंग का काम वो कर सकते हैं। वो अपने आंखों से आपके प्रसादम को ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनको मुंह में ही डालना है। He can just eat the prasadam that is there in front of you just by looking at it. He creates the world just by looking at it. Just by looking at the material world he creates. तो ये उनकी शक्ति है। So therefore no one is greater than him or equal to him. तो उनसे सम और उनसे अधिक और कोई है नहीं। His potencies are multifarious. परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। अनेक शक्तियां हैं भगवान का। So ये श्वेताश्वर उपनिषद में ये श्लोक आता है। So since everything is in full opulence in personality of Godhead and is existing in full truth, there is no duty for the supreme person of Godhead to perform. तो उनके अंदर सब कुछ है, वो स्वयं परिपूर्ण है। पूर्णमदं पूर्णमिदं, we've heard this shloka from Ishopanishad. मतलब वो संपूर्ण
है, उनको उनके मतलब देयर इज नो लैक, उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ चीज का अभाव है, सब कुछ तो है भगवान के पास। तो ऐसे भगवान के लिए क्या कार्य हो सकता है? कार्य हम इसलिए करते हैं कि हम जो हमारे फुलफिलमेंट हमें प्राप्त करना है उसके लिए हम कार्य करते हैं। भगवान के लिए ऐसा कोई तो है नहीं। सो वन मस्ट रिसीव द रिजल्ट्स ऑफ वर्क as some designated duty, but one who has nothing to achieve within the three planetary system certainly has no duty. भगवान को तीनों लोकों में कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। So again we see Prabhupada tends to become repetitive. Why is repetition required? Prabhupada खुद बोलते हैं क्यों वो रिपीट करते हैं बार बार एक ही चीज को, एक ही पर्पट में आप बार बार सुनेंगे उसी के बारे में। तो Prabhupada says repetition improves our मेमोरी, बिकॉज जब वो हमारे अंदर बैठ जाएगा जो कॉन्सेप्ट है। एंड येट लॉर्ड कृष्ण इज एंगेज इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। वो ऐसे आग कर देंगे तो सब लोग मिट जाएंगे, तो लेकिन वो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में है, युद्ध का निर्देशन कर रहे, मार्गदर्शन दे रहे अर्जुन को, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो कार्य कर रहे हैं। And as a leader of Kshatriyas, because Kshatriyas are duty bound to give protection, क्योंकि वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय कुल में है अभी वो, तो उनको क्षत्रियों का जो कर्तव्य है उसको निरूपण करना है, वरना वो ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे। He does not do anything that violates the revealed scripture, और जब भी वो कार्य करते हैं वो शास्त्र प्रमाण से ही करते हैं। और अर्जुन को भी बार बार आप देखेंगे भगवत गीता में कि वो बोलते हैं ऋषि ने ऐसे कहा, मुनि ने ऐसे कहा, जो लोग जानते हैं वो ऐसे कहते हैं, वेदों में ये प्रमाण है, ये बोलते भगवान होते हुए भी वो वेदों का प्रमाण दे रहे हैं। दैट इज हाउ वी गिव एविडेंस। तो कुछ चीज का प्रमाण हम कैसे देते हैं, भगवान उसका भी निरूपण दे रहे हैं, उसका भी उदाहरण हमें दे रहे हैं। So we will move on to shloka number 23. Before that, just one line summary of what we read in shloka 22. Krishna now gives his own example. Krishna abhi utna hi udaharan de rahe that though he has no duties to perform, he still acts to set the right example. एक अच्छे उदाहरण निरूपण करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, तो उनके अंदर जो शक्तियां है, नॉलेज, कैपेसिटी और एक्शन का, वो सब स्वाभाविक तरीके से उनमें अंदर आ रहा है, तो अपने आप वो परिपूर्ण हो जाता है, फिर भी वो कार्य कर रहे हैं। सो विल ट्राई टू स्क्वीज इन दिस वन मोर श्लोका 23. Let's see if we'll be able to get through this. We have about 6 minutes left. यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अहम न वर्तेयम, अगर मैं कुछ करूंगा नहीं, मम वर्त्मानुवर्तन्ते, तो वैसे ही लोग भी करेंगे। भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं किया, हम भी कुछ नहीं करेंगे। हमें भगवान कृष्ण को आदर्श हम मानते हैं, कृष्ण ने कुछ नहीं किया, हम भी कुछ नहीं करेंगे। सो फॉर इफ आई डिड नॉट एंगेज इन वर्क, अगर मैं अपने कर्तव्यों का पालन, अभी मैं आया हूं मानव रूप में क्षत्रिय बन के, मुझे अपना उदाहरण से लोगों को ज्ञान देना है, अगर मैं नहीं करूंगा, इफ आई डिड नॉट एंगेज इन वर्क, वो पार्थ सडनली ऑल मेन वुड फॉलो माय पथ, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, सब लोग मेरा उदाहरण दे देंगे कि कृष्ण ने भी तो कुछ नहीं किया था, तो इसलिए हम भी करेंगे। जैसे कि रासलीला का एग्जाम्पल बहुत तेजी से कोई सब लोग दे देते हैं, भगवान कृष्ण ने रासलीला किया तो हम भी करेंगे। तो भगवान कृष्ण इज लिफ्टेड गोवर्धन हिल, पहले वो करके दिखाइए, लिफ्ट गोवर्धन हिल एंड शो, देन यू कैन डू ऑल द अदर थिंग्स दैट ही डिड। तो उन्होंने विषेरा सर्प कालिया के ऊपर जाके उसके सर के ऊपर नाचा उन्होंने, मतलब बिना भी कोई अधैर्य, मतलब विदाउट बीइंग स्केयर्ड, he went and danced on the hoods of Kaliya. Can you do that? One small snake will run away far from it. So we should not quote convenient examples. So when people talk like this, they're only quoting convenient examples.
So Krishna does not want to set a wrong example. इसलिए वो कार्य कर रहे हैं. In order to keep the balance of social tranquility for progress in spiritual life, there are traditional family usages meant for every civilized man. तो हर उसका खानदानी कर्तव्य होता है, सामाजिक कर्तव्य होता है, एक कुटुंब के अंदर कर्तव्य होता है. स्कूल में आप जाते हैं, टीचर का कर्तव्य है और स्टूडेंट का कर्तव्य है. ये सब उस जगह पे जो उचित उनको कर्तव्य निभाना है उसको करके दिखाना है. Although such rules and regulations are for conditioned souls and not Lord Krishna, because he descended to establish the principles of religion, he followed the prescribed rules. So he is telling why dharma संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. धर्म संस्थापना करने के लिए वो आए हैं, तो उनको अच्छा उदाहरण दे के ही जाना चाहिए. तो इसलिए वो कार्य कर रहे हैं. Other common men would follow in his footsteps because he is the greatest authority. तो बाकी जो अन्य आम आदमियां हैं, आम जो जनता है, वो जो नायक है, और यहाँ पे परम नायक भगवान श्री कृष्ण की बात हो रहा है, उनको देख के वो सीखेंगे. So it is understood from श्रीमद् भागवतम. श्रीमद् भागवतम में हमें साफ साफ ये मतलब हमें पता चलता है कि द्वारका में जब कृष्ण एक हाउस होल्डर थे, एक गृहस्थ थे द्वारका में, तो इट्स अंडरस्टूड दैट लॉर्ड कृष्ण वाज परफॉर्मिंग ऑल रिलीजियस ड्यूटीज एट होम. एक गृहस्थ को जो जो कर्तव्य, यज्ञ, होम, दान, जो जो उनको करना था, एक आदर्श निरूपण करने के लिए उन्होंने किया. सुबह जल्दी उठते थे, वो भी 3 बजे 3:30 बजे उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में वो ध्यान करते थे. ऐसे भगवान कृष्ण किसका ध्यान करते थे? So Lord Krishna would meditate on whom? So somebody asked him this question and Krishna replied, I meditate on myself. मैं अपने ऊपर, मैं अपना ही मेडिटेशन कर देता हूँ, मेरे ऊपर मैं ध्यान करता हूँ. So we must not follow this example. अच्छा, कृष्ण अपने ऊपर उन्होंने मेडिटेशन किया, हम भी हमारे ऊपर मेडिटेशन करेंगे. We will also meditate on ourselves. So Krishna, whom he has to meditate on? He himself is the Supreme Lord. So to set an example, he is meditating, and he is meditating on the Supreme Lord. Who is Supreme Lord? It is Krishna. So naturally, he is going to meditate on himself. So thank you very much for joining me in this session. Just trying to close it with one sentence. So Krishna is telling, what happens if it does not work in this shloka? अगर वो काम नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो लोग क्या करेंगे? कुछ लोग रहते हैं, they will be waiting for bad examples and they will make that their life goal. तो उन्होंने ऐसे किया है, हम भी ऐसे ही करेंगे. So to set the right examples. So, and Krishna is telling, atandritaha, uses this word, atandritaha means with great care. बहुत ही मतलब carefully मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ. So thank you very much for joining me today. Probably we will be doing one session tomorrow also. Thank you Deepak, Digambar, Sudha Mataji, Ayush, Colonel Ajay, Mahadev ji, Reena Mataji, Dr. Ramesh, Ritika ji, Samay Singh, Sangamitra Mataji, Shalini Mataji, Sukti Mataji, Uday Singh ji, thank you very much for joining. Please chant Hare Krishna every day and continue to prepare for your Prabhupada Ashraya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And if anyone has questions, please post it on my WhatsApp. I'll reply to you.